উঠো গো ভারত লক্ষ্মী, উঠো আদি জগত জনপূজা। উঠো গো ভারত লক্ষ্মী, উঠো আদি জগত জনপূজা। দুঃখ দৈন সবনাশী, কর দূরিত ভারত লজ্জা। ছাড়ো গো ছাড়ো শোক সজ্জা, পর সজ্জা। পুন কমল কনক ধন ধান্যে, জননী গোলহ তুলি বক্ষে, শান্তন বাস দেহ তুলি চক্ষে। কাঁদিছে তব চরণ তলে, ত্রিংশতি কোটি নর নারী গো। জননী গোলহ তুলি বক্ষে, শান্তন বাস দেহ তুলি চক্ষে। কাঁদিছে তব চরণ তলে, ত্রিংশতি কোটি নর নারী গো। কাণ্ডারি নাহিক কমলা, দুঃখ লাঞ্ছিত ভারত বর্ষে। শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কলসাগর কম্পন দর্শে। তোমারও অভয় পদ স্পর্শে, নবহর্ষে। পুন চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে। জননী গোলহ তুলি বক্ষে, শান্তন বাস দেহ তুলি চক্ষে। কাঁদিছে তব চরণ তলে, ত্রিংশতি কোটি নর নারী গো। ভারত শ্মশান কর পূর্ণ, পুন কোকিল পূজিত কুঞ্জে। দিংসা দেশ করি শূন্য, কর প্রেম গুঞ্জে। দূরিত কর তাপ তুঞ্জে, তপপুঞ্জে। পুন চলিবে ভারত শুভ লক্ষ্যে। জননী গোলহ তুলি বক্ষে, শান্তন বাস দেহ তুলি চক্ষে। কাঁদিছে তব চরণ তলে, ত্রিংশতি কোটি নর নারী গো। জননী গোলহ তুলি বক্ষে, শান্তন বাস দেহ তুলি চক্ষে। কাঁদিছে তব চরণ তলে, ত্রিংশতি কোটি নর নারী গো। भारत माता की। सबाई जोर से भारत माता के, भारत माता के। सबाई के हाथ तुलते हबे। माननीय अमित शाह जी आसले सबाई मिले हाथ तुले আমরা ওনাকে भारत माता की जय बोले ওনাকে অভিবাদন জানাবো। তার জন্য একবার ট্রায়াল হচ্ছে। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। वंदे वंदे वंदे। সংকোচের বিহ্বলতায় নিজেরে অপমান, সংকটের কল্পনাতে হয়েও না ম্রিয়মান আজ। সংকটের বিহ্বলতায় নিজেরে অপমান,
সংকটের কল্পনাতে হইও না ম্রিয়মান আজ সংকটের বিহ্বলতায় নিজের অপমান ধর্ম যাবে শঙ্খ রবে করিবে আহ্বান নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিও প্রাণ ধর্ম যাবে শঙ্খ রবে করিবে আহ্বান নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিও প্রাণ মুক্ত কর ভয় আপনা মাঝে শক্তি ধরো নিজের কর জয় মুক্ত কর ভয় আপনা মাঝে শক্তি ধরো নিজের কর জয় আজ সংকোচের বিহ্বলতায় নিজের অপমান সংকটের কল্পনাতে হইও না ম্রিয়মান আজ সংকোচের বিহ্বলতায় নিজের অপমান। মাননীয় গৃহমন্ত্রী আর কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের এখানে এই কার্যক্রম স্থলে হাজির হবেন, উপস্থিত হবেন। আমরা আজকে বিভিন্ন জেলার প্রত্যেকটি মণ্ডল থেকে এখানে উপস্থিত হয়েছি। খুবই সুন্দর লাগছে কি অনেক দিন পরে আমরা এরকম সবাই একসঙ্গে সম্মিলিত হয়েছি। একবার সবাই দুহাত তুলে বলবো ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে জয় শ্রী রাম। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, अमित शाह स्वागतम, अमित जी स्वागतम, अमित जी स्वागतम, अमित जी स्वागतम, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। সকলে বলবেন, জোরে বলবেন যাতে নবান্নের পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছায়। भारत माता की, अमित जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, अमित जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नड्डा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नड्डा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जी स्वागत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, अमित शाह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता
पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, अमित जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नड्डा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, 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 भारत माता के, जय भारत माता के, जय वंदे मातरम, वंदे। मातरम, আজকে এই কার্যকর্তা সম্মেলনে আমাদের মাঝে ভারত সরকারের যশস্বী মন্ত্রী, গৃহমন্ত্রী, আমাদের সকলেরই সুপরিচিত, আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, প্রাক্তন সভাপতি মাননীয় অমিত শাহজি মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। করতালি দিয়ে তাকে আমরা স্বাগত জানাবো। আমাদের মাঝে তার সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন রাজ্যের সভাপতি তথা ভারত সরকারের আরেকজন মন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়, তাকেও আমরা স্বাগত জানাবো। আমাদের সকলের প্রিয় বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, তাকেও আমরা স্বাগত জানাবো করতালি দিয়ে। প্রথমে আমি এই কার্যকর্তা যে বিজয় সংকল্প সম্মেলন, সেই সম্মেলনে শুরুর আগে আমি সকলের কাছে অনুরোধ জানাবো, সকলে আমরা উঠে দাঁড়াবো। বন্দে মাতরমের মাধ্যমে আজকের এই প্রোগ্রাম শুরু হবে। আমি শর্মিষ্ঠা দিকে অনুরোধ করব বন্দে মাতরমের জন্য। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम्, वन्दे मातरम्, शुभ्रजोत्स्ना पुलकितजामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। প্রথমে আমি মাননীয় রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয় এবং বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে অনুরোধ করব মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহকে উত্তরীয় এবং পুষ্পগুচ্ছ দিয়ে আজকের এই কার্যকর্তা সম্মেলনে স্বাগত জানানোর জন্য। এবং মায়ের মূর্তি আছে, সেই মায়ের মূর্তি নিয়ে আসুন। भारत माता की जय, मां काली की जय, मां काली की। এরপরে রাজ্যের সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে উত্তরীয় দিয়ে বরণ করার জন্য অনুরোধ করছি।
আমাদের প্রথমে আমি প্রাস্তাবিক ভাষণের জন্য রাজ্যের সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে অনুরোধ করছি। ভারত মাতা কি। যত আমরা সংখ্যায় এখানে উপস্থিত আছি, এখনো পেছনে এই আমাদের ভিউ কাটার খুলতে হচ্ছে, সেই জোশের সাথে দু হাত মুঠ করে আমার সাথে বলুন, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ, অমিত শাহ জিন্দাবাদ, অমিত শাহ জিন্দাবাদ, অমিত শাহ জিন্দাবাদ। সবাইকে নমস্কার। আজকে আমাদের পরম সৌভাগ্য যে অপারেশন সিঁদুরের পর আমাদের মাঝে কিছুদিন আগে গত 29 তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন। এখন আমাদের যশস্বী গৃহমন্ত্রী এবং কর্পোরেশন মিনিস্টার এবং আমাদের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি, আধুনিক ভারতের চাণক্য মাননীয় অমিত শাহ এখানে উপস্থিত আছেন। জোরে হাততালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানাবেন। উপস্থিত আছেন আমাদের লড়াকু নেতা, ভারতীয় জনতা পার্টির বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী। জোরে হাততালি দিয়ে মাননীয় শুভেন্দু তাকে হাততালি স্বাগত জানাবেন। আমাদের অবজারভার, আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মাননীয় সুনীলজি বনসাল, মঙ্গল পান্ডে এবং অমিত মালব্যজি আমাদের অবজারভার এবং কো অবজারভার। জোরে হাততালি দিয়ে ওনাদেরকে স্বাগত জানাবেন। সম্মানীয় সাংসদগণ, মঞ্চ উপবিষ্ট রাজ্যের বিভিন্ন পদাধিকারীগণ, আমাদের এমএলএরা যারা সামনে আমি যাদেরকে দেখতে পাচ্ছি, এক ঝাঁক এমএলএ, এবং তার সাথে ভারত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে সমস্ত লড়াকু কার্যকর্তারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, শত বাধাকে উপেক্ষা করে আজকে এখানে হাজারে হাজারে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির এই সভাতে এসেছেন, তাদের সকলকে আমার তরফ থেকে আমি গৈরিক অভিনন্দন জানাই এবং আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই। আজকের মূল বক্তা মাননীয় অমিত শাহজি, সেজন্য আমরা খুব বেশি কিছু বলবো না। আমি সংক্ষিপ্ত আকারে দু চারটি কথা আপনাদের সামনে রাখতে চাই। মাননীয় মোদীজির নেতৃত্বে ভারতীয় সেনা পাকিস্তানে অপারেশন সিঁদুর করেছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আজকে সেই অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বলছেন কি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নাকি এখানে সিঁদুর বেচতে এসেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসকে বলতে চাই, বেচাবেচির কারবারে ভারতীয় জনতা পার্টি বিশ্বাস করে না। কেনা বেচাতে আপনি বিশ্বাস করেন, সেই জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনি আমেরিকাটা কোথা থেকে একটা পিএইচডি ডিগ্রি কিনে নিয়ে এসেছিলেন, সেটাও ভুয়ো পিএইচডি ডিগ্রি, সেই ডিগ্রি আপনার বাতিল হয়েছে। আমরা সিঁদুরকে মহিলাদের সম্মানের জায়গা মনে করি। আপনারা বারবার তৃণমূল কংগ্রেস এই সিঁদুরকে অপমান করছেন, আমাদের ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অপমান করছেন। আপনার উত্তরবঙ্গের এক পুচকে নেতা, সে সিঁদুর বেচার কথা বলছে, আর আপনার এক নেতা বীরভূমের মোটা নেতা, সে নেতা পুলিশের বাড়ির বউ মা, তাদের সম্মান রাখতে দিচ্ছে না। লজ্জা লাগে না মুখ্যমন্ত্রী হয়ে? যে পুলিশ মন্ত্রী নিজের পুলিশের বাড়ির মহিলাদের ইজ্জত সামলাতে পারে না, রক্ষা করতে পারে না, এই রকম অপদার্থ মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তার আসনে বসে থাকার কোনো অধিকার তার নেই, তাকে তার আসন ছেড়ে চলে যেতে হবে। আর আমরা বরাবরই মোদীজির নেতৃত্বে বলিষ্ঠ ভারতের কথা বলেছি। 2016 সালে উড়িতে যখন পাকিস্তান অ্যাটাক করেছিল, সন্ত্রাসবাদী হামলা, আমরা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছি। 19-এ পুলওয়ামা ঘটেছিল, আমরা বালাকোট করেছি। আর এবার অপারেশন সিন্দুরের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের ভিতরে 100 কিলোমিটার দূরে গিয়েও ভারতীয় মিসাইল হামলা করেছে, ভারতীয় মিসাইল আঘাত করেছে। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আপাতত এটা সাময়িকভাবে স্থগিত। অপারেশন সিন্দুর শেষ হয়নি, খেল अभी भी बाकी है, পিকচার अभी भी बाकी है। খেলা বাকি আছে, খেলা হবে, চিন্তা নেই। এবং আমি ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদেরকে বলছি, তৃণমূল বলে খেলা হবে, খেলা হবে। আগামী দিনে 26 আসছে, 1 বছরের কম সময় বাকি আছে। অনেক মার খেয়েছি, অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি, আর নয়। সভাপতি হিসেবে আমি আপনাদেরকে বলছি, যদি আপনাদের উপর কেউ মারতে আসে, পাল্টা মারুন, মার খাবেন না, মার দিয়ে তারপরে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বকে জানাবেন।
প্রধানমন্ত্রীর সভা থেকে আমি বলেছিলাম অপারেশন বাংলা হবে, মুখ্যমন্ত্রী রাগ করেছিলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পাকিস্তানের জন্য অপারেশন সিঁদুর আছে, আপনার বিরুদ্ধে অপারেশন বাংলা করার জন্য কোনো সেনাবাহিনী লাগবে না। আমার ভারতীয় জনতা পার্টির এই হাজার হাজার মন্ডল স্তরের কার্যকর্তা, তারা আপনার বাংলা অপারেশন করবে এবং আপনাকে আপনার চেয়ার থেকে মুক্তি দিবে। ভারতবর্ষ এগিয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের শিক্ষকদের চাকরি বাতিল হচ্ছে, ওএমআর সিট পাওয়া যাচ্ছে না। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এলে প্রতি বছর এসএসসি হবে এবং পরীক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে সেই ওএমআর সিটের কপি আমরা শিক্ষার্থীদেরকে দেব, আমরা পরীক্ষার্থীদেরকে দেব, কোনো দুর্নীতি হতে দেব না। মোদিজির নীতি না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা। আর তারপরে যারা তৃণমূল কংগ্রেসের খেয়েছে তাদেরকেও বমি করিয়ে জনগণের টাকা ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব ভারতীয় জনতা পার্টির। তাই বন্ধুগণ, মূল বক্তা আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রী। আপনারা আমাকে বহুবার শুনেছেন, আবার শুনবেন আগামী দিনে। তাই সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হন, ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটাই সিম্বল পদ্মফুল, সেই পদ্মফুলকে সামনে রেখে 26-এর লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিন। চলাম চলাম গুরু বাতাসা অনেক শুনেছি, এই পার বিজেপি অপারেশন বাংলা শোনাবে, সেই মন্ত্র নিয়ে বিজেপি এগোবে। সবাই একত্রিত হন। কি 26-এ পরিবর্তন করার জন্য তৈরি তো? এদিকে তৈরি তো? সবাই মিলে 26-এর পরিবর্তন করবো তো? তাহলে দু হাত মুঠ করে প্রতিজ্ঞা নিন, এবং এই প্রতিজ্ঞা মাননীয় গৃহমন্ত্রীর সামনে নিচ্ছেন। প্রার্থী পছন্দ নয়, অমুক নয়, কিচ্ছু চলবে না। যে দাঁড়াবে, কলা গাছ হলো ভারতীয় জনতা পার্টির সিম্বল, তাকে জেতাতে হবে, তাকে জিতিয়ে আমাদের বিধানসভায় পাঠাতে হবে। বলুন আমার সাথে, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। ধন্যবাদ, সবাই খুব ভালো থাকবেন, সবাইকে নমস্কার। ধন্যবাদ মাননীয় রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে। এরপরে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। हिंदू यदि बाँचते चाओ, हिंदू यदि बाँचते चाओ, हिंदू यदि बाँचते चाओ। समवेत भारतीय जनता पार्टीर राष्ट्रवादी देवतुल्य कार्यकर्ता बृंद, बयस्कदेर प्रणाम, मायेदेर श्रद्धा, सतीर्थ अनुजदेर शुभेच्छा अभिनंदन भालोबासा एवं जोहार जानाई। आमरा सुनते एसेछि आमादेर यशस्वी नेता, जिनि विश्वेर सर्वबृहत् नेता नरेंद्र मोदीजीर विश्वस्त सहयोगी हिसाबे ऑपरेशन सिंदूर, जा भारतीय सेना जवानदेर एक बड़ साफल्य, तार अन्यतम नेतृत्वेर कारिगरदेर मध्य अन्यतम मोदीजीर नेतृत्वे आमादेर सकलेर नेता भारत सरकारेर स्वराष्ट्र और समवाय दफ्तरेर मंत्री, जार हाथ धरे 2020 सालेर 19 डिसेम्बर विप्लवेर माटी मेदिनीपुरे आमी पताका नियेछिलाम। सेई अमित शाह जी के आमी आमार कोटी कोटी प्रणाम जानाई। आमादेर राज्येर सभापति, तरुण सभापति एवं भारत सरकारेर मंत्री सांसद डॉक्टर सुकाন্ত मजुमदार, सर्वभारतीय नेतृत्व सुनील बंसल जी, मंगल पांडे जी, अमित मालविया जी एवं सम्मानित मंच। आमरा प्रत्येक दिन बोली, एक बार नय 3 बार बोली, आज के आमरा अमित शाह जीर भाषण सुनबो। ताई आमी एकदम कथा बाड़ाते चाई ना। आमी अमित शाह जी के 3टे सम्प्रति तार अवदानेर जन्य कृतज्ञता ज्ञापन करते चाई। पहलगाम में जो हादसा हुआ
उसमें बंगाल की 3 बंगाली को एक खूंखार आतंकवादी ने हत्या किया, निर्मम हत्या किया। बिटन अधिकारी का वाइफ सीएए में अप्लाई किया, तुरंत उनका पास जानकारी मिला और बिटन अधिकारी का स्त्री का पास सीएए का सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अमित शाह जी दे दिया। सेकेंड, हमारी हुगली का रिसड़ा बीएसएफ का जवान पीके साहू पाकिस्तानी ने बंधक बनाया था। अमित शाह जी मोदी जी का आदेश में उनको सही सलामत अपने घर वापस कर दिया। अमित शाह जी हमारी कोच बिहार का फार्मर राजवंशी समाज का उकील बर्मन को बांग्लादेश ने बंधक बनाया था। हमारी गृह मंत्री बीएसएफ को देकर उनको सही सलामत कोच बिहार में वापस कर दिया। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ वेस्ट बंगाल पीपल। मेरा ज्यादा আর কিছু বলবো না। ধুলিয়ান শামসেরগঞ্জ কয়েক ঘন্টার মধ্যে বিএসএফ সিআরপিএফ নামিয়ে ঠান্ডা যিনি করেছেন তার নাম অমিত শাহজি। তিনি বাংলাকেও এই অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করবেন। আমি শুধু জানতে চাইব মোথাবাড়ির বদলা হবে না? হবে তো? ধুলিয়ানের বদলা হবে? শামসেরগঞ্জের বদলা হবে? হরগোবিন্দ দাসের হত্যার বদলা হবে? চন্দন দাসের হত্যা বদলা হবে? বিটান অধিকারীর হত্যার বদলা হবে? সমীর গুহর হত্যার বদলা হবে? মনীষ মিশরের হত্যার বদলা হবে? হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বদলা হবে? হবে তো? হবে? বাই বাই করতে হবে হীরক রানীকে। হীরক রানী হীরক রানী হীরক রানী হীরক রানী হীরক রানী চোরদের রানী চোরদের রানী চোরদের রানী চোরদের রানী। জয় জয় শ্রী রাম। ভারত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে, বিরোধী দলনেতা পশ্চিমবাংলা বিধানসভার, যার ভাষণ শোনার জন্য আমরা গত কয়েকদিন থেকেই প্রস্তুত হয়ে কেউ রাতে বেরিয়েছি, কেউ ভোরবেলা বেরিয়েছি এবং বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের থেকে আমরা আজকে এই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে উপস্থিত হয়েছি। যে যশস্বী গৃহমন্ত্রী, আমাদের সকলের এই অভিভাবক মাননীয় অমিত ভাই শাহ, যাকে শোনার জন্য আমরা বসেছি, তাকে আমি অনুরোধ করব তার বক্তব্য রাখার জন্য। ভারত মাতা কে। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई? बंगाल के मंडल पदाधिकारियों की आवाज को क्या हो गया है? बंगाल में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? घुसपैठ रोकनी है या नहीं रोकनी है? भ्रष्टाचार समाप्त करना है या नहीं करना है? हिंदुओं का पलायन रोकना है या नहीं रोकना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत
माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान सुकांतो मजूमदार जी, मेरे मित्र और बंगाल विधानसभा में जिनके खड़े होते ही दीदी को डर लगता है, ऐसे हमारे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री सुनील बंसल जी, हमारे प्रभारी मंगल पांडे जी, सह प्रभारी अमित मालविया जी, बैठे हुए सारे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और बंगाल के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। सबसे पहले अरे अब सुनो भाई सुनो, जिंदाबाद जरूर करना है। 26 में हमारे मुख्यमंत्री की शपथ के बाद करना है। भाइयों बहनों, सबसे पहले थोड़ा दूर है। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं श्री कालीघाट मंदिर, श्री श्री 108 करुणामयी काली माता मंदिर और दक्षिणेश्वर काली मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब ये बंगाल की वीर भूमि पर, संस्कार भूमि पर आया हूं, तब कवि गुरु टैगोर जी, स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारी पार्टी के स्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। वंदे मातरम के रचयिता महान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये भूमि, जिस भूमि ने सालों तक पूरे भारत का मार्गदर्शन करने का काम किया, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, धर्म हो, स्वतंत्रता संग्राम हो, हर क्षेत्र में सालों तक बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा। और वही बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ
दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है, दुराचार का केंद्र बना। भाइयों बहनों, यही बंगाल में चुनावी हिंसा सेशन के बाद, जब टीआर सेशन सीईसी बने उसके बाद पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई। मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दीदी, कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली, और मैं सारे हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूं कि यहां तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करें। लोकतंत्र के अंदर हिंसा कभी शोभा नहीं देती है। दीदी, हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रैगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो। आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। और भाइयों बहनों, वोट बैंक की तुष्टीकरण ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा ये ममता बनर्जी ने पार कर दी। अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को, यात्रिकों को धर्म पूछ पूछ कर परिवार के सामने मार दिया। मुझे बताओ बंगाल वालों, वो पाक प्रेरित आतंकवादियों को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक किया या नहीं किया? भाइयों बहनों, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी, और अब ऑपरेशन सिंदूर कर 100 किलोमीटर अंदर जाकर उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए, और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। उस वक्त कुछ नहीं बोला, और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया, आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया है। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूं, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब होता है। भाइयों बहनों, 1990 से ये देश आतंकवाद झेलता है। 40,000 से ज्यादा लोग
आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। ये कांग्रेस की सरकारें, यूपीए की सरकारें, इंडिया अलायंस की सरकारें, जिसमें ममता बनर्जी भी मंत्री थी, कुछ नहीं करती थी। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद गोली का जवाब गोले से देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने। और ममता जी, आप जितना पक्ष लेना है उतना पाक प्रेरित आतंकवादियों का पक्ष ले लो। मैं बताकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। अब कोई भी हिमाकत करेगा तो उसको उतनी ही मजबूती के साथ जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मैं आज ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहादुर सेना बीएसएफ ने जो वीरता बताई है, वो सभी बीएसएफ कर्मी और सेना के जवानों को दो हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारा काम किया है, परंतु विकास के साथ साथ बंगाल की संस्कृति को भी मोदी जी नहीं भूले। सालों से बंगाल वासियों की मांग थी कि हम बंगाल को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे। आज मैं ममता दीदी को पूछने आया हूं, 10 साल तक आप केंद्र में मंत्री थी या आपका समर्थन था, बंगाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस क्यों नहीं दिया? और भाइयों बहनों, हमारे मोदी जी ने बंगाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने का काम कर दिया। और ये ममता जी है जिनको इसके लिए धन्यवाद करने का भी शिष्टाचार नहीं आता। भाइयों बहनों, आगामी चुनाव में यहां बैठे हुए सभी मंडल के पदाधिकारियों का मेरा विनती है कि बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का भविष्य नहीं तय करता है। बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव है, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। मुझे बताओ मित्रों, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? ये भाईपो रोक सकते हैं क्या? घुसपैठ केवल और केवल कमल फूल की सरकार रोक सकती। तृणमूल के सांसद मुझे संसद में पूछ रहे थे कि बीएसएफ क्या कर रही है। अरे ममता दीदी, हमने आपसे भूमि मांगी है, पूरी भूमि दे दो, बाढ़ को समाप्त हो जाने दो, एक परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं। आप जानबूझकर बॉर्डर पर भूमि नहीं देते हो क्योंकि घुसपैठ चलती रहे, आपकी वोट बैंक बढ़ती रहे और आपके बाद आपका भतीजा भी मुख्यमंत्री बनता रहे। भाइयों बहनों, ये होने वाला नहीं। ममता दीदी को मैं भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बताने आया हूं। 17 के चुनाव के बाद हमने तैयारी की, 19 की लोकसभा में हमें सफलता मिली, 21 की विधानसभा में 77 सीटें मिली,
और 24 की लोकसभा में 97 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का लीड रहा, 97 विधानसभा सीटों पर, और 143 सीटों पर 40% से ज्यादा मेरे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण वोट मिले हैं। मैं आज ये नरेंद्र मोदी की सेना जो मेरे सामने बैठी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है, उसको मैं बताने आया हूं कि थोड़ा फासला बाकी है, आप 40% तो क्रॉस कर गए हो, 4-5% आगे बढ़ना है, 4-5। और अगले चुनाव में हमारी सरकार बनने जा रही। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 17 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, तब मैंने कहा था यहां हमारी सरकार बनेगी, और आज वो दिन नजदीक आ गया है। 26 तक दिन रात एक कर हर एक बंगाल के मतदाता के पास जाइए और नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का संदेश लेकर जाइए। पूरा देश चाहता है कि यहां देशभक्तों की सरकार बने, तुष्टीकरण वालों की सरकार न बने। ये ममता दीदी ने सोनार बांग्ला का स्वप्न तहस नहस कर दिया। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, महिलाओं पर अत्याचार, हिंदुओं के साथ अन्याय, इससे इनकी राजनीति चलती है। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी ने, इनके शासन में एसएससी भर्ती घोटाला हुआ, पशु तस्करी घोटाला हुआ, डियर लॉटरी का घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, मनरेगा घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री आवास में घोटाला हुआ, राशन घोटाला हुआ, मिड डे मील में घोटाला हुआ, केंद्र के फंड हड़प कर लिए गए, नगर पालिका भर्ती घोटाला हुआ, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का घोटाला हुआ, गाय की तस्करी का घोटाला हुआ। हजारों करोड़ रुपया बंगाल की जनता का ये तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट को भेंट चढ़ गया। मैं आज सभी कार्यकर्ताओं को पूछने आया हूं, ये पैसा सिंडिकेट का है या बंगाल की गरीब जनता का है? मुझे बताइए, ये सिंडिकेट का है क्या? जोर से बोलिए, सिंडिकेट का पैसा है। मोदी जी जो पैसा भेजते हैं, सिंडिकेट की भेंट चढ़ना चाहिए क्या? ये पैसे पर अधिकार बंगाल की महिला का है, माता का है, बेटी का है, बंगाल के गरीब का है, बंगाल के युवा का है। कलकत्ता के बाजार में युवाओं की नौकरी बिकती है, इनके घर से इतना पैसा पकड़ा जाता है कि गिनने में 27 मशीन थक जाते हैं, मगर पैसा खत्म नहीं होता है। भाइयों बहनों, इस सिलसिले को बंद करना पड़ेगा। मुर्शिदाबाद में अभी हिंसा हुई, हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि बीएसएफ को बुला लीजिए। हम नहीं बुलाएंगे, क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। फिर हमारे कार्यकर्ता हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर बीएसएफ आई और हिंदुओं को बचाने का काम किया। ममता जी, आपके नेताओं ने वो बीएसएफ को गाली बोला और आपके नेता वहां खड़ा रहकर दंगाइयों की हौसला अफजाई करते रहे। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, जिस प्रकार से बंगाल सरकार के मंत्री इस दंगों में शामिल थे,
ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा था जिन्होंने हिंदुओं को अन्याय किया है। भाइयों बहनों, बेलडांगा में कार्तिक पूजा के दौरान हमला हुआ, सरस्वती पूजा पर हमला हुआ क्योंकि मुहर्रम निकाल दिया जाए। भाइयों बहनों, मुस्लिम तुष्टीकरण की सभी सीमाएं ममता दीदी लांग गई हैं। मुझे बताओ भाइयों बहनों, मन से बताना, मोदी जी जो वक्फ का कानून लाए हैं वो अच्छा है या नहीं है? जोर से बोलो, अच्छा है या नहीं है? बंगाल की जमीन